How are you? Ish, how are you? How are you, dear friend? Good, good, All good. set? All, Fantastic. very excited, to talk to you. But how should I Yeah, address you? Are really a senior in all walks of life, yeah. age. How should I address you? I have a good name. It's Ashish. So Ashish is fine. Thank you so much, Ashish. I really appreciate. I'll take बहुत बहुत this. शुक्रिया विशाल. नहीं नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बिरयानी भाई किलो के साथ इंस्टा लाइव करने के लिए. You know, although you have played more anti-heroes in your life on screen, but I think you are hero in a real life. We all know that. Well, बहुत बहुत शुक्रिया. Uh, कैसे हैं आप? And I'm very very happy to hear what you people are doing. So it always inspires me जब कुछ लोग interesting कुछ काम करते हैं और हम लोग किसी भी तरीके से अगर विशाल क्या होता है कि हम लोग सब we all look at life in a particular way की इस तरह से ही होता है. Okay, and मुझे उससे मजेदार लगता है कि when people are trying to do different things and when people are doing different things it's fantastic to cheer them and say that मजा कर रहा है. So I see you guys doing that and I'm very happy therefore to be congratulating you on this journey and in any which way if I can be of support. Let's face it, my friend, at this point, at this point in life, we have to really understand that the game is not only what's in it for me. And in fact, the game is that हम लोग सोचते रहते हैं कि what's in it for me. But what we have to do is that we have to expand our me. And we have to get that in our me, there are more people involved, more dreams, more aspirations are there. And as more people grow, it all is going to come around. And so I'm very, very happy to be here. No, thank you so much. We really thank you. And like you said, we are definitely doing something different. मैंने अपनी life में हमेशा different. I did my engineering from IIT, then did my masters from US. I was an IT entrepreneur. Then I was in finance. Wow. Then 5 years back, I think I told you, but I'll repeat. 5 years. I was really keen. We were investing in a lot of consumer companies, F&B companies, Singapore that time. Why don't we have an Indian food chain worldwide? मतलब हमारी जो heritage है, from Malayali to Bengali food to Rajasthani food to so many cuisines. We have such, and when we go outside India, लोगों को लगता है कि सिर्फ एक बटर चिकन बनाते हैं, टिक्का बनाते हैं या माँ की दाल बनाते हैं. So the Indian food is very diversified, very rich history we have, and all the soft, like you are creating a soft power from Bollywood, right? Bollywood is soft power worldwide. Hollywood is soft. The food is also very big power. Once a country is rising, the way India is, we need our cuisine to, go all over the world in the way it should be. So we zeroed down on biryani because food delivery is going worldwide 5 years back when we saw in US, Europe, Singapore, Japan, Asia, everywhere. Double income, pollution, all the reasons, we all know. But biryani is a special category because first of all, it's very, very delivery friendly. It's India's heritage. It is like a pizza, versatile, very complete meal. Like you have carbs, you have meat, you can have vegetables, you can have katal biryani, you can have, Hyderabadi biryani, which is spicy, a Lucknowi biryani, which is non-spicy, or a Kerala biryani, or a Dindugal biryani. So here we have our Indian history. Talaseri biryani. So basically, you know what? एक चीज जो आपकी बात का निचोड़ मैं समझा हूँ और जिसमें मैं बहुत यकीन रखता हूँ वो ये है कि what is the flavor that you are bringing to life? Right. All right. So there is that difference between surviving and living in a unique way. And for me, जैसे मैं बहुत लकी रहा हूँ, मतलब पढ़ाई नहीं कर पाया कि मैं आईआईटी नहीं कर पाया. बहुत इच्छा थी कि मैं आईआईटी कर पाऊँ और मैं मैथ में समझ नहीं पाया बंधु. मैं आपको सच बताऊं, मेरी जिंदगी के तड़के में मेरे जिंदगी का जो तड़का था उसमें मैथ मिसिंग हो गया. अब सुनिए, पर उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज रहती है
तो वो मैथ मुझे मिस करके मेरे बेटे को मिल गया, और वो मैथ्स के साथ ऐसे बात करता है जैसे आप लोग करते हैं। वो आजकल बर्कली में अकेला बैठा हुआ कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा है, 3rd ईयर में आ गया है। तो पर मजेदार बात मुझे क्या दिखती है, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे खाना हो, चाहे कोई भी हमारा काम हो, आप क्या खास तड़का लाते हैं, अपना तड़का क्या देते हैं, दैट इज द डेफिनेटिव पार्ट। ऑलराइट, और मुझे वो बहुत इंस्पायर करता है कि जब आप लोग कहते हैं ना व्हाट्स द मास्टर स्ट्रोक, कंसिडर मास्टर स्ट्रोक वो है जो आप देते हैं। कोई भी चीज को जब आप देते हैं और लोग कहें वाह, दैट बिकम्स अ मास्टर स्ट्रोक। एंड आपने जैसे कहा कि इन आवर कंट्री वी हैव गॉट सो मेनी डिफरेंट टेस्ट, ओके, सो मेनी डिफरेंट डिशेस, और वो जब आप वर्ल्ड को ऑफर कर सको एक अलग लहजे से, कहते हैं ना कि बात तो सेम है। कल अशोक चक्रधर जी मेरे एक शो में आए थे, टू ऑफ अस, उसमें उन्होंने बहुत अनूठी बात कही जो शायद आपको और देखने वालों को अच्छी लगेगी, कि बात वही है यार, बात ऐसी नहीं कि बात अलग है, लेकिन कहने का अंदाज अलग है, कहने के अंदाज में एक जो बात होती है। So I understand completely when you say that you want to bring that Indian cuisine to the world, and in a way that it can be done, that is scalable. क्या बात है, वाह। हमारा तड़का है आशीष, अगर मैं बोलूं तो हमारा तड़का है कि हम एक तो फ्रेश बिरयानी बनाते हैं हर ऑर्डर पे, और जिस हांडी में बनाते हैं डिलीवर करते हैं, ये कोई और नहीं। बाकी लोग बहुत बल्क में बना लेते हैं, सिर्फ गर्म करके देते हैं, वो हमें मंजूर नहीं था। तो हम सबसे उम्दा तो जो फ्रेश बनाना और उसी हांडी में जिसमें डिलीवर करना। दूसरा, क्योंकि हमने इस तरह के बिजनेस वर्ल्ड वाइड बहुत देखे हैं, मैंने और मेरे जो को फाउंडर है कौशिक रॉय, तो हमने कहा कि इसमें जिस तरह के एसओपीज चाहिए, स्टैंडर्डाइजेशन, जो मिलेगी, जो इंदौर मिलेगी, जो गुड़गांव मिलेगी, कल को वही सैन फ्रांसिस्को और लंदन और जापान में मिलेगी। तो उसको जो स्टैंडर्डाइज करना टेक्नोलॉजी से, ऑडिट से, वो हमारा तड़का है। और आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग। इनफैक्ट मैं एक जो बात समझ पा रहा हूँ, व्हाट आई फाइंड वेरी इंटरेस्टिंग अबाउट दिस, कि ओल्ड वर्ल्ड और न्यू वर्ल्ड का बहुत अच्छा समागम आप ला रहे हैं। बहुत अच्छा, ओल्ड वर्ल्ड रेसिपीज एंड न्यू वर्ल्ड वेज। न्यू वर्ल्ड वेज, this is a marriage made in the present. I love it. पर आप बताइए, taste of pudding lies in eating. आपको बिरयानी भाई किलो का खाना कैसे लगा? You are a big foodie. बहुत अच्छा लगा दोस्त, बंधु, मुझे बहुत पसंद आया। मैं दरअसल क्या है कि मैं खैया हूँ खैया हूँ, मतलब मैं प्रोफेशनल खाना खाता हूँ मैं, और वो सालों से खा रहा हूँ। और मैं कह रहा हूँ खाना इसलिए क्योंकि मुझे खाना पसंद है। मैं इंटरेस्टिंग जगह जाकर इंटरेस्टिंग खाना खाना पसंद करता हूँ। और देश में मुझे मौका मिला कि मैं देश के विभिन्न हिस्सों में जाकर काम कर सकूं, या मैं कहूँ कि खाना खा सकूं, और हर जगह पर जैसे आपने कहा कि बहुत इंटरेस्टिंग टेस्ट होते हैं। और आई हैड द एब्सोल्यूट प्लेजर ऑफ हैविंग फूड फ्रॉम योर प्लेस, एंड आई थिंक आई हैड इट थ्राइस। और मैं डेफिनेटली कहूंगा कि इट वाज, न सिर्फ मैंने खाया, मेरे आसपास के साथियों ने भी खाया, इट वाज पार एक्सेलेंस। और मैं ऐसा कहता हूं, मैं लखनऊ में जाके खा चुका हूं, मैं कलकत्ते में जाके खा चुका हूं, मैं उसमें बहुत यकीन नहीं रखता कि उसके जैसा था। मतलब मैं कह रहा हूं कि अच्छा खाया, हमने कहा मजा आ गया, एंड दैट इज द की। मेरे ख्याल से जो एक्सपीरियंस आप देते हैं, एंड विशाल, इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज जो मेरे दिमाग में आती है कि फूड लाइक एनीथिंग एल्स, हम लोग कोई भी जब चीज करते हैं कि हम लोग क्या एक्सपीरियंस देते हैं। तो मेरे ख्याल से एक लेवल पर इट इज द फूड, किस तरह से उसको पकाया जा रहा है। जैसे आपने सब बातें करी, मैं आपको बताऊं, हम लोगों को पता भी नहीं चलेगा ये सब, आप अगर नहीं बताएंगे उनको पता भी नहीं चलेगा। एसेंशियली वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, वी डोंट केयर। जो कहते हैं ना कि एक एक्टर होता है, वो काम करता है, अब एक्टर कहता है पता है मुझे बड़ी दिक्कत होती है, अरे हु केयर्स यार, what matters is what you deliver. तो इसलिए मैं, during my talks, I share one thing, that all of us, whatever that we are doing, essentially we are the delivery guy. Right. So
we may have worked very hard. हम लोगों ने बड़ी काम किया, बहुत ये किया, बहुत वो किया. The only thing that matters is what are we delivering today. Okay, and I think that's what you have worked out. So congratulations on that. Thank कि you. जो भी आपने अपने SOPs रखे हों वगैरह रखे हो वो that will be part of some MBA degree. वो लोग कहेंगे अरे क्या case study किया है. But as far as the end consumer is concerned, I will tell you, I will give you a big thumbs up because you've gotten something right, my friend. Okay, and आज हम लोग मैं किसी के लिए एक वीडियो बना रहा था, उसका एक हिस्सा मुझे इस वक्त याद आ रहा है. मैं कहता हूँ कि बता जिंदगी में throughout life, my friend, we have to make choices. Right. हम लोग we all have to make choices. I think there is some things we choose. Yeah, Yes. the talent lies in the choices you make in life. Exactly. And now comes the interesting part. Now comes the interesting part. There are certain choices we'll take that we will do this. Okay, and there are certain choices we'll say that we won't do this. We're choosing that. Right. Of all those choices, some of the things will work. And some of the things won't work. So our essential job is to take care of things that worked and mend the things that didn't work. Right. Right. And therefore life has that continuing. It's not there is no finality to it. और ये जो जर्नी ऑफ लाइफ मुझे इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग लगती है विशाल, जैसे कि आपने भी बताया कि आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई और आप यहाँ पर इस दौरान यहाँ पहुंचे हैं, कि जब हम इस लाइफ की जर्नी को अपने लिए भी वाह कर पाए और दूसरों के लिए भी वाह कर पाए, इसका मजा है. तो आपने हमारी हैदराबादी बिरयानी भी खाई है, लखनवी भी, शायद आपने हमारे कबाब कोरमा भी ट्राई करे हैं, तो आपको सब चीजें कबाब कोरमा और एवरीथिंग, एनी फीडबैक यू हैव, आई एम हैप्पी टू टेक एनी. आई लव्ड इट. भाई साहब देखिए, मैं खाना बनाना जानता नहीं हूँ, मैं खाना खाना जानता हूँ. अगर आप बुरा बनाते मैं जरूर बोल देता. But I loved it, and I think you gotten it right. I mean, see, because and also again, विशाल, अगर हम लोग चीज को देखें, आप एक्सपीरियंस क्या देते हैं? What is the experience that you are giving to people? That is the keen part. The keen part is not कि कोई आपकी तारीफ करे. The keen part is that उस आदमी को, उसको जब वो खाया है, जो उसके आसपास वाले थे, and that is what makes. I mean, when I look at myself, as I look at the work that I do, which could be as an actor or as a motivational speaker, the only thing that counts is what is the experience you're imparting to that person. And yes, and that is the key of good business, and no one knows it better than somebody like you. नहीं, आपने जैसे कहा कि आपने तड़का क्या लगाया और किसी की लाइफ को छुआ कैसे, राइट, टच कैसे किया. So if I can also say, like we have now 40 outlets in 20 Indian cities. We'll be going international next, and we employ around 1,000 people. और COVID times में भी हमने सबकी employment बरकरार रखी. Wow. Hats off. We have been doing CSR activities to help the needy on our website. We have a lot of information on our safety standards, CSR activities. I'll encourage people to look. But Ashish, मैं आपके बारे में थोड़ा सा, I'm very curious about your life. Do you take it as a compliment? I was reading somewhere that Ashish Vidyarthi is the Gene Hackman or Morgan Freeman of India. Is that a compliment, or you take it like this is not? Vishal, I haven't read it, but if somebody said it, I love it. Love it. Okay. Yes, because that's such a nice thing to say. So it's a good thing to say, my friend. It's amazing. You all, हम लोग कुछ खास करना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, और हम लोग सब कुछ नए अंदाज ढूंढ रहे हैं. और वो चाहे, अगर आप मुझे पूछें कि मेरी जर्नी एज एन एक्टर, तो कोशिश यही रहती है कि कुछ अमेजिंग काम करें, और उस कोशिश के दौरान आप जिंदगी के नए तजुर्बे पाते हैं, और अनकॉन्शियसली आप उन तजुर्बों को अपने रोल्स में खेल पाते हैं, कोशिश करते हैं. और मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, मैं एक अभिनेता हूं, मैं जो भी मोटिवेशनल स्पेस में काम करता हूं. हम लोग सब एक ऑनेस्ट डेज जॉब कर रहे हैं बंधु. इनफैक्ट ईच ऑफ द पीपल हु आर वॉचिंग दिस,
हम लोग सब वी आर ट्राइंग टू पुट इन एन ऑनेस्ट डेज जॉब and to create something extraordinary out of it. Right. All right, that's the key part. And as long as we can add and keep passion with it, सब जिंदगी याहू है. क्योंकि अगर आप, जरूरी नहीं है कि आप जिस चीज के लिए पैशनेट हैं वही काम आप कर रहे हैं, लेकिन आप जो काम कर रहे हैं अगर उसमें आप अपना पैशन डाल दें, दैट इज व्हाट मेक्स इट फैंटास्टिक. क्योंकि अगर हम लोग कहें ना कि आपके भाई आपका मतलब what are your credentials to go and make biryani yaar? So and that's what I always felt, you know, people keep looking for credentials. आपके क्या credentials? अरे भाई credentials देके तुम क्या करोगे? यहाँ पर एक IIT का आदमी जो फाइनेंस में उसने काम किया बिरयानी बेच रहा है ना. यहाँ पर एक एक्टर जो हिस्ट्री पढ़ता था अब वो यू नो ट्राइंग टू डू सम थिंग्स विद ऑर्गेनाइजेशन. पॉइंट ये नहीं है कि आपकी क्रेडेंशियल्स क्या है, पॉइंट ये है कि आपका पैशन क्या है, आपका ड्राइव क्या है, एंड व्हाट आर यू विलिंग टू पुट एट स्टेक, यू नो. एंड दैट इज समथिंग व्हिच रियली आई एम पैशनेट अबाउट. क्योंकि मैं जब आप जैसे एंटरप्रेन्योर्स को देखता हूँ, यू नो व्हाट इंस्पायर्स मी इज दैट व्हाट इज इट दैट यू आर रेडी टू पुट एट स्टेक. और जब हम में से कोई भी when we are ready to put something at stake, यार इसमें मेरा नाम जा रहा है, मैं उसको ओके नहीं करूंगा, ओके नहीं, it will be extraordinary, you know. And that drive, वो चाहे you could be in the food business, you could be in the dance business, you could be a scientist, you could be an actor, you know, you could be driving a vehicle, you could do whatever that you want. आप जब ये मान के चले कि this work is going to carry my name, so I'm going to own it, you know, that is the passion which, you know, is something which is available to anyone. नहीं, आपने बहुत अच्छा कहा. शायद आपने, और देखिए आपकी जो इंडस्ट्री है, जो थिएटर या मोटिव या फूड है, पैशन इज द ड्राइव का इक्वल रोल है. और व्हाट also, you know, like to hear your views is कि जैसे like you said about me, I did my engineering, then I was in IT business, finance, and now. So what I have always observed is my emotional energy at that particular point in life. जिस समय जो एनर्जी थी उसको टैप कर, तभी उसको इंस्टिंक्ट्स को टैप करके ही वो ड्राइव आ पाएगी कनेक्ट. जैसे आप वेरी इंटरेस्टिंग. जो आपने जैसे आपने एक्टिंग करी 1986 से 2020 तक अब तक करते आ रहे हैं. नाउ यू आर अ मोटिवेशनल. I saw your speeches on TED on vulnerability, you know, forward living life. तो आपकी इमोशनल एनर्जी भी चेंज हुई, जो पहले एक्टिंग की तरफ थी और ऐसा स्पीकर, तो आपने उसको टैप करा. सो यू नो, आपके क्वेश्चन में ही बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपने कही विशाल. आई वांट यू टू जस्ट, यू नो, आपने कहा कि हमारे अंदर वो चीज है, इट इज लाइक जो उसको आप टैप नहीं करेंगे वो जाया जाएगी. You know, it'll be of no use. तो और हम लोग टिपिकली अगर हम देखें, अमूमन हम सब you know, we are known for our profession. So you know, okay, you're an actor. Okay, so you're an actor. पहले तो you're not an actor. तो क्या करना, एक्टर करना है. एक्टर क्या होता है भाई? उसका चलो एक्टर बन गए. तो अब लोग एटलीस्ट अब एक्टर हो. अरे अभी now you're also a motivational speaker. Also you are doing workshops for organizations and leadership. अरे it's not fitting. So all of us first have to understand that the world and we want us fitted in something. Therefore, हो जाती है. Exactly. और वो उसके बाद आप वो स्ट्रगल है. बट आपके जो सवाल में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मुझे दिखी, और आई जस्ट वांट टू ब्रिंग दिस आउट. कंसिडर हमारे अंदर सब कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं आपके, मतलब खाने की बात करें, वो दालचीनी भी है, कलौंजी भी है, गोश्त के टुकड़े भी हैं, प्याज भी है, गार्लिक भी है. अब उसके साथ आप क्या बनाना चाहते हो, दैट इज योर एंड माई चॉइस, माई फ्रेंड. तो मेरे लिए भी, मैं सालों पहले समझा था कि आई एम ऑल्सो एन एक्टर, आई एम ऑल्सो अ ट्रैवलर, आई एम ऑल्सो अ फादर, ऑल्सो अ सन, ऑल्सो अ फोटोग्राफर, ऑल्सो. तो जब हम अपने ऑल्सोस पर काम कर पाते हैं, देन वी आर ट्रूली यूजिंग. और उसका कोई अंत है? बिल्कुल अंत नहीं. तो मेरे ख्याल से फॉर समबडी लाइक मी, मैं
मैं हैबिचुअली रेस्टलेस हूँ, अगर आपको दिख रहा होगा अभी भी बातचीत करने के ढंग में। तो कई साल विशाल में लगा रहा कि मैं शांत हो जाऊं। उसके बाद मुझे पता चला कि यार मैं शांत नहीं हो सकता। तो जब पता चला कि मैं शांत नहीं हो सकता तो मैंने कहा यार कि इसी के साथ कुछ किया जाए। सो माई लाइफ इज अबाउट बीइंग अ ट्रैवलर, सो आई एम अ ट्रैवलर। मैं मेरी माँ मुझे कहा करती थी पहले कि तुम्हारे पाँव के नीचे सरसों है। और ये 26 सालों से मैं जो घर से बाहर निकला हूँ, गत 26 वर्षों में बंधु, मैं आप कह सकते हैं कि मैं तकरीबन 18 से 19 दिन महीने से मैं बाहर रहा हूँ। और ये बताता हूँ कि ये पिछले 5 महीनों ने मेरी, मतलब क्या बताऊं, मेरा जो सारा एवरेज है खराब कर दिया। कि मतलब ये 5 महीने विशाल मैं घर से नहीं निकला हूँ यार, ठीक है ना। इनफैक्ट मैंने अपने लिंक्डइन प्रोफाइल में लिखा है कि एट होम बट नॉट लॉकडाउन, क्योंकि मैं घर से नहीं निकला हूं, बट दिस इज बीन एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीरियड फॉर मी टू काइंड ऑफ रियली लिबरेट माई सेल्फ। क्योंकि मैं मतलब मेरे दोस्त भी मुझे कहते हैं कि अनबिलीवेबल आशीष दैट यू हैव मैनेज्ड टू रिटेन योर मेंटल बैलेंस। क्योंकि मैं घर से नहीं निकला दोस्त, एंड इट वाज अ कॉन्शियस कॉल ऑन माय पार्ट। आई सेड कि वो चीज जो मुझे बहुत ड्रॉ करती है और मैं कहता हूं कि उसके बगैर मैं नहीं रह सकता, suddenly this period forced me to own it. And what it also allowed me to understand is that owning staying at home doesn't mean that you have to own people's version of staying at home, lockdown. So I'm at home, but I'm not locked down. I'm free. I'm creating stuff. I'm engaging in conversations. और इस पूरे दौरान एक बहुत ही it has been a period of a lot of creation, जहां पर हम लोग at Avid Miner हम लोग न जाने कितने इवेंट्स हम कर चुके हैं ऑर्गेनाइजेशंस के लिए. That is a rich event. I've been reaching out to students, entrepreneurs, home, people who are staying at home, people who have lost their jobs, people who are dealing with mental issues, people who are wanting some support. We are creating, our interventions for them. So for me, this is really an opportunity where I got to pause, take a pause, and to see that what else can I do with this also. Right? Or this is the celebration of life, Bandhu. The celebration of life is that if I can be at 55 and still be discovering parts of me which I didn't know existed. And if you notice for yourself, Vishal, I don't know what your age is. How old are you? I am around 48. Okay, fantastic. You're 48 and you're discovering yourself. Yes. And you aren't doing it for anybody else, Vishal. You're doing it for yourself. So in a way, if I can, do a bit comment on that, in India, in Asia, we might think 50, 55. Of course, Trump is 75 plus, Modi ji, Amitabh Bachchan, Modi ji 75. Joe Biden, who's fighting for now US elections, Democratic candidate, is 78. So I think we all have, and we start discovering, I think, life after 50s, 60s, because time, certain curation, and now we can pick out what is the synthesis and what we really can refine out of it. And if I can, your point, what you said is, you might be physically locked in, but you are such an aware person, so many characters you have played, that physically might be locked in, but your energy is not locked in. That's what you're trying. The energy is, you see, that's what you do, I think, as an actor. Use your energy to play a character. Now you're using your energy to be a motivational speaker or connect to people or help people, right? So, and I think, discovery happens in 30, 40 to आप 40s तो आप एक रेस में निकाल देते हैं, 30s and 40s तो एक रेस में निकाल देते हैं. उसके बाद आई थिंक अपनी लाइफ का पर्पस या सिंथेसिस, आई थिंक आप मोदी जी से पूछे, किसी और से, आई थिंक 50s के बाद ही वो एक सिंथेसिस बन के डिस्टिल होके. मैं उसमें सिर्फ एक चीज पर मैं कहना चाहूंगा, उसको आप एज पर भी मत रोकें आप, क्योंकि पॉइंट ये नहीं है कि 50 के बाद आपको समझ आती है. मैं बता रहा हूं कि देखिए, मेनी थिंग्स वी काइंड ऑफ टॉक इन टर्म्स ऑफ हाइंडसाइट. विशाल, हमको मैं कहूँ कि देखो 50 के बाद दिव्य ज्योति, ऐसा कुछ नहीं है भाई. अगर आप देखें, आप अपने को भी अगर देखें, अगर इफ यू जस्ट लुक एट योरसेल्फ आल्सो, इट्स अ माइंडसेट गेम, माय फ्रेंड. राइट.
वो आप 20 साल के हो सकते हैं, 19 साल के हो सकते हैं, आप 70 साल के हो सकते हैं. It's the entire thing is the mindset game. The only thing that which I keep sharing with people is that be aware कि आप किसी और के mindset को अपना mindset मत बनाइए कि 19 में ऐसा होना चाहिए और 21 में ऐसा होना चाहिए और 50 में ऐसा होना चाहिए. Right. I agree. See, because and that is the pleasure of life. So I'll share with you. जैसे अब 19 से मेरी शूटिंग शुरू हो रही है. ठीक है, आज से 4-5 दिन बाद से हमारी शूटिंग शुरू हो रही है, उसकी पूरी तैयारी है. कल इसी टाइम पर मैं रीडिंग कर रहा हूँ. जूम पर वो रीडिंग हो रही होगी, जाके हम लोग शूट करेंगे, जो सब भी है. और पॉइंट ये है कि जब हम लोग काम करते हैं और जो काम हम करते हैं, पॉइंट इज आर यू ब्रिंगिंग समथिंग एक्स्ट्रा टू द टेबल और नॉट. और मैंने ये पाया है थ्रू माई लाइफ, when you bring something extra to the table, you bring some excitement to your own life. Right, of course. So I do it for myself, my friend. If you really look at yourself, Vishal, you will understand that you are doing it for yourself. You want excitement in your life, all right? Yes. So when we get this, कि the onus is on us. जिम्मेदारी मेरी है कि मैं अपनी जिंदगी को इंटरेस्टिंग करूं. और जैसा हम लोग पाएंगे कि हम लोग जब दूसरों के लिए कुछ कर सकते हैं तो उससे ज्यादा खुशी किसी चीज में नहीं मिलती. राइट. तो आप 1986 एक्टिंग कर रहे हैं, 35 साल हो गए, और आई थिंक मेरे ख्याल से आप 300-400-500 कितनी मूवी कर चुके हैं, कितनी लैंग्वेजेस में. तो आज भी 200 से ज्यादा फिल्म पे करी है, उतनी 11 भाषाओं में. तो उतना ही एक्साइटमेंट आज भी होता है नाउ, और यू वेरी चूजी नाउ कि इस रोल में एक्साइटमेंट है, अब मैं यही करूंगा. तो बंधु, ये भी आपको बताऊं कि कुछ सालों तक क्योंकि मैं सिर्फ फिल्में ही कर रहा था, तो मुझे हर फिल्म को हाँ कहनी मेरे लिए लाजमी था, क्योंकि उससे घर में राशन आता है. तो लोग बोलते हैं यार तुम चूज क्यों नहीं करते. मैंने कहा भाई घर में हम रोज खाते हैं. so you become I'm an eternal pragmatist, my friend. क्योंकि मैं बहुत सालों पहले मुझे समझ में आ गया कि अगर मैं एक प्रोफेशनल एक्टर हूं, मेरी जिम्मेदारी सिर्फ मेरे रेपुटेशन को बचाने की नहीं है, मेरी जिम्मेदारी, परम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपने घर वालों को ठीक से रख सकूं. तो उसके चलते मैं बहुत साफ था कि मैं काम करूंगा. और मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं उन लोगों की जो काम करते हैं. कई बार आपको लगता है यार थोड़ा और अच्छा करना चाहिए था. आई नो यार, बट जो मुझे मिला है मैं उसको अच्छे से करूंगा. तो सबसे पहली बात ये हो. अब बात ये है, अगेन इट कम्स बैक टू द सेल्फ, कि आप शायद सेम रोल कर रहे हैं क्योंकि आपको यार वो रोल ऑफर नहीं हो रहा जो आप करना चाहते हैं. लेट्स फेस इट. इसको लेकर कुछ शर्माने की बात नहीं है. आपको रियलिटी, वेलकम टू रियल लाइफ. मेरा बेटा, मैं उसके साथ हमेशा बात करता हूँ. मैं कहता हूँ वेलकम टू रियल लाइफ. और मुझे कहता है बाबा यू कीप सेइंग दैट. आई टेल हिम आई कीप सेइंग दैट टू माई सेल्फ, क्योंकि इन रियल लाइफ यू गेट व्हाट यू गेट. एंड इफ यू कैन क्रिएट समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी आउट ऑफ व्हाट यू गेट, दैट इज लाइफ. एंड इट नीड नॉट ऑलवेज बी दूसरों की नजर में. बंधु देखिए, आप अभी बिरयानी बाय किलो बनाकर, विशाल आप कुछ लोग जानते हैं, इसके पहले शायद कुछ थोड़े कम लोग जानते होंगे, लेकिन इसका मतलब क्या आप सब अनसक्सेसफुल थे? या आपके और मेरे पिता, जिनको शायद, जैसे मेरे पिता को शायद इतने लोग नहीं जानते, पर क्या वो अनसक्सेसफुल थे? बिल्कुल नहीं. बहुत खुशहाल, बहुत जीवंत, अमेजिंग कॉन्ट्रीब्यूशन की जिंदगी उन्होंने जी है. तो the moment you understand that your success will not be measured, it not be no, exactly. Please get it right. It's great to know that social media में इतनी following है. Wonderful, congratulations, feel great, fantastic. But that, if you allow that to be your barometer, you have had it. Because thereafter, फिर आप, then you become a कठपुतली. आप बोलोगे अच्छा मुझे ज्यादा फॉलोइंग के लिए क्या करना है, बताओ, ज्यादा इसके लिए क्या करना है. बी वेरी वेरी क्लियर, फॉर पीपल हु आर ऑल्सो ऑन सोशल मीडिया. फॉर मी, फॉर अ बेटर पार्ट ऑफ माई लाइफ जर्नी, विशाल, मैं कभी सोशल मीडिया पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मुझे एक्टिंग का बहुत शौक था. मैं एक्टिंग करता था, लेकिन सिर्फ एक्टिंग को लेके हाथ हिलाऊं और लोगों को फैन बनाऊं, उसमें मुझे वो नहीं मिलता था कि मैं लोगों को जाके सिर्फ अपने एक्टिंग के किस्से बताऊं. मुझे मजा आने लगा about 6 years back when I started interacting with human beings. मैंने कहा मैं एक्टिंग की वजह से मेरे दरवाजे खुलते हैं, लोग मुझे अपने पास आने देते हैं, और तब क्या हम कुछ अमेजिंग क्रिएट कर पाए उनके लिए, ताकि उनकी लाइफ में इंपैक्ट हो पाए.
एंड दैट इज व्हेन आई रियली स्टार्टेड इंटरैक्टिंग विद सोशल मीडिया। मैंने कहा कि इट इज नॉट जस्ट, इसलिए मैं आके सिर्फ ये नहीं कि आपके पास आके फिल्मी कहानी बताया जा रहा हूँ, बहुत सारी कहानियां हैं बंधु, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि अगर मैं लोगों के साथ कुछ ऐसी चीजें शेयर कर सकूं उनकी जिंदगी के बारे में, ताकि उनको भी लगे कि जिंदगी में जो सब हम और आप गुजर रहे हैं वो कॉमन है। लेट अस नॉट गिव अप होप, दैट इज द मेन थिंग। और इंस्पिरेशन बहुत जरूरी है, वी कैन प्रोवाइड इट समहाउ, राइट। और अच्छा बाय द वे, मुझे खाने से बहुत इंस्पिरेशन मिलता है। मैं एक चीज बता दूं, जितनी जगह ट्रैवल किया है बंधु मैंने, जितनी जगह वहां पर छोटे छोटे रेस्टोरेंट में जाके, छोटे छोटे होटल, तो कहते हैं ना होटल जाके, मैं आपको एक मजेदार किस्सा बताता हूँ। सेलम में, तमिलनाडु में सेलम में मैं शूट कर रहा था, बड़ी भयंकर गर्मी थी यार, पूरे दिन पसीना पसीना हो गया। मैं कहा शाम के वक्त यार कुछ बढ़िया खाया जाए। तो तमिलनाडु की खासियत है, वहां पर एक चीज होता है, इसको कहते हैं मिलिट्री होटल। तो अगर आप मिलिट्री होटल जाओ तो आप बिल्कुल आप निश्चिंत हो सकते हो, आपको कमाल का नॉन वेजिटेरियन खाना मिलेगा, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है भाई। तो टेक्नोलॉजी मेरा दोस्त है, मैं बहुत ज्यादा जानता नहीं हूं, लेकिन गूगल साहब मेरे बहुत कमाल के दोस्त हैं। तो इतने कुछ वर्षों से मैं उनको पूछे सवाल पूछता हूँ और वो मेरे सवालों का जवाब भी दे पाते हैं। मैं उनको बोलता हूँ इंटरेस्टिंग नॉन वेजिटेरियन फूड, ऐसे पूछता हूँ नियर मी। तो गूगल साहब मेरे को लेकर गए एक कमाल, एक छोटी सी दुकान जिसके ऊपर लिखा हुआ था फला फला मिलिट्री होटल। तो वहां पे कुछ एक्टर्स थे, मैंने कहा कि आओ सब लोग हम लोग खाने चलते हैं। तो हम लोग घुसे, देखा कि दाहिनी तरफ देयर इज एन ओल्ड लेडी स्टैंडिंग देयर एंड शी हैड अ चॉक स्लेट बोर्ड इन हर हैंड। उनके साथ में कुछ अंडे रखे हुए थे, अंडे के जो, और उनके साथ जो 2 डेगचियां रखी हुई थी। उसके बाद हम लोग जाके बैठ गए। अब उन्होंने बोला कि, मैंने कहा मेन्यू क्या है? तो आदत है मुझे ऐसी जगहों पर, तो कहा कि मेन्यू नहीं है, उन्होंने बता दिया। तो उन्होंने कहा मेन्यू इज डोसे एंड नाटकोली मटन। तो मैंने कहा नाटकोली मटन, दैट इज ऑड। टू नाटकोली मीन्स कंट्री चिकन एंड मटन मीन्स मटन। तो मैंने बोला कि नाटकोली एंड मटन कैसे? लो सर, नाटकोली मटन। इट वॉज सो इंटरेस्टिंग। पता चला कि उस जगह पर वो 2 डेगचियों में, उस लेडी के साथ में 2 डेगचियों में 1 कच्ची मटन और 1 कच्ची चिकन, जो सेम इंग्रेडिएंट से बना है, वो सर्व किया जाता है। दैट्स द फर्स्ट टाइम एवर दैट आई हैड अ मटन चिकन सर्व टुगेदर। एंड इफ यू हैव मुट्टे डोसा इज अंडा वाला डोसा, तब वो जो आदमी है, जो वेटर साहब है, वो आएंगे इस लेडी के पास, वो 2 अंडे लेंगे और वो स्लेट पर 2 अंडे लिखेंगी, इसलिए वो स्लेट लेकर बैठी थी। तो इट वॉज सो इंटरेस्टिंग। तो आप ऐसी ऐसी जगह जाते हैं, आपको खाना तो कमाल मिलता है, साथ साथ इतनी गजब की कहानियां दिखती है। सो देयर आर टेल्स, माइलारी बोल के एक जगह है, जो मैसूर में है। माइलारी में वेजिटेरियन आपको डोसा और इडली, मेरे ख्याल से 3 चीजें ही हैं, शायद उपमा है या शायद सीरा भी होगी, पर उसका टेस्ट नहीं भूलता बंधु। उसका जो डोसा है ना, एक तरफ से लिटरली ऐसा काला और दूसरी तरफ से ऐसी सफेद, मतलब आपको लगेगा जल गया है क्या, पर नहीं, क्या टेस्ट। अब ये छोटी छोटी दुकानें हैं अलग अलग जगह पर, जहां पर आपको वो खास टेस्ट मिलता है। एक और जगह है विद्यार्थी भवन, मेरा एकदम फेवरेट है, मेरे नाम से है लेकिन मेरा नहीं है। तो हमारे दोस्त अरुण चलाते हैं उसको, बैंगलोर में गांधी मार्ग में। क्या टेस्ट है यार। और वो सदियों, मेरे ख्याल से 1940 की चीज है वो, दुकान है। If I can say something, you put it very well, कि food and travel actually go together, because food एक कल्चर बताता है, वहाँ की हेरिटेज बताता है। जो भी खाना जहाँ बनता है उसका एक रीजन है, वहाँ का क्या क्लाइमेट, क्या वहाँ पकता है, क्या है, किस तरह के वहाँ कल्चर है। लखनऊ में यखनी खाना है, केवड़ा डलता है, जैसे रीजन फॉर इट। उसकी हिस्ट्री 100-200-300 साल की। चाहे आप इटली में टस्कनी में जाएं, चाहे ब्रिटेन में जाके फिश एंड चिप्स खाएं, उसका एक कल्चर और हिस्ट्री है। सो दैट फूड that connects you to the culture of that place. और अगर आप उस ऑथेंटिक नहीं रखेंगे
कि किस तरह के बर्तन में या दम देके या जिस भी तरह से वो बनता है, हाँ, अगर आप उसको चेंज कर देंगे तो वो कल्चर वहां से, रेसिपी निकल गई तो फिर आप खैर जानते होंगे कि जो बिरयानी अवध की थी जब वो बंगाल पहुंची, हम्म तो कहा जाता है कि वाजिद अली शाह इज पर्सिंग वेरी टाइटली। तो हम्म हम्म, उनके जो शेफ थे उन्होंने आलू ऐड किया, राइट, सो दैट मटन की क्वांटिटी थोड़ी कम की जाए। कम कीजिए, दैट्स तो हम इसलिए कलकत्ते में आपको बिरयानी में वो आलू आलू, बिरयानी में आलू डलता है। लेकिन अब उसमें एक ट्विस्ट है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूँ। कलकत्ते में एक दुकान है जिसका नाम है रॉयल बिरयानी, इफ आई ओके, एम नॉट मिस्टेकन। रॉयल बिरयानी इज द ओनली प्लेस जहां पर आलू नहीं डलता। उसकी भी कहानी इंटरेस्टिंग है। देखिए, पता नहीं सच्चाई कितनी है, लेकिन कहानी में जोर है। तो वो कहते हैं कि वाजिद अली शाह साहब जो थे, वाजिद अली शाह, वो क्योंकि पर्स स्ट्रिंग साइड थे, जो जो बाकी लोगों के लिए बनता था उसमें आलू डलते थे, लेकिन उनके लिए मटन पूरा बनता था। और उसके जो शेफ थे, उनके पड़पोते या किसी ने ये रॉयल खोला कि उसने कहा भाई तो वो आलू नहीं डालते, वो आलू नहीं डालते थे भाई। तो दूसरों को उन्होंने लगा कि आलू के, तो वो सी दैट अब पता कल्चर, नहीं कितनी सच्चाई है, बट इसी बिकॉज हम लोग क्या है कि हम लोग खाकर हिस्ट्री समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, हाँ, तो खाओ खाओ फिर दूसरे लोग हमको कोई हिस्ट्री बता देना, क्या बात कर रहा है सीरियसली। हाँ हाँ हाँ, मजा आ गया। और उंगली से खाने का बड़ा मजा आया। आई मीन मेरा ऐसा प्योर मानना, ये चम्मच वम्मच से भाई बहुत मुश्किल है। इनफैक्ट मैं आपको बताता हूँ, मैं चाइनीज भी उंगली से खाता हूँ। और मुझे ये पता चला कि चीज ऑड है, आप भी हंस पड़े। तो हमारी एक मित्र है, उन्होंने मुझे बताया कि दैट द फर्स्ट टाइम दैट शी हैड मेट अ ह्यूमन बीइंग who ate noodles with the finger. So I asked her, I said, how should you be eating Chinese? She said, either chopsticks or fork. मैंने कहा, who told you that? मैंने कहा, क्योंकि चीनी लोग जो हैं वो तो chopsticks they just scoop it up. प्लेट पे रख के तो नहीं खाते वो, the bowl is held here and it is scooped up. But I feel even in this, can you do something the way you want to do it? किसने कहा आपकी उंगलियां खराब है? किसने कहा कि आप वो नूडल्स उंगली से नहीं खा सकते? और मुझे लगता है कि ये सब छोटी छोटी रूल्स आपको तोड़ने पड़ेंगे अपने हिसाब में। क्यों लोग ऐसा सोचते हैं? मतलब वो तो कहते हैं ना कि इट्स कंसिडर्ड ब्लास्फेमस अगर आप अमेरिका जाएं, न्यूयॉर्क जाएं और आप फोक से आप पिज्जा खाएं। इट हैज टू बी एंड इट हैज टू ड्रॉप एंड you have to go like that. मजा So you have to, अरे मजा तभी आएगा भाई साहब, घबराओ मत। मैं लोगों को कहता हूँ यार, खाना खा रहे हो, लोग कहते हैं ना यू बेग योर पार्टनर, बेग योर पार्टनर जी, मस्ती से खा भाई। अगर तो उसको सोच रहा है ऐसे करके निकाल, मतलब बढ़िया से खाओ यार, बहुत आत्मा तक, जरूरी। आत्मा तक अरे रस यार, खाना 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 और अलग अलग जगह आप जाएंगे, आप देखेंगे कि लोग खुश होते हैं खिलाकर। मुझे याद है कि हम लोग मैंगलोर में हम लोग शूट कर रहे थे। एक जने के रेस्टोरेंट में हम लोग काम कर रहे थे, उनके सामने शूट कर रहे थे। तो जैसे मुझे तो खाने का शौक है, मुझे कोई खाने बुलाता है मैं कहता हूँ जरूर। हर जगह में कई लोग मुझे मिलते हैं, आपको याद है मैं आपको वहां मिला था? तो मैं कहता हूँ यार मिला, अरे सर आप तो हमारे घर में आके खाना भी खा के कहते हैं। मैंने कहा भाई ये बात सही है, मैं बहुतों के घर जाके खाना खा चुका हूँ, विश्वास करो यार। विशाल, मैं इतने लोगों के घर जाके खा चुका हूँ और लोगों में कहता हूँ, देख मैं लोग आदमी ठीक हूँ लेकिन मैं नाम भूल जाता हूँ यार, प्लीज बुरा मत माना। बिकॉज आई लव टू ईट एंड इट्स फैंटास्टिक। जब आप किसी घर, तो उस रेस्टोरेंट के बाहर काम कर रहे थे, दे इन्वाइटेड मी होम, और क्या खाना खाया हो। एंड और मजा, प्योर वेजिटेरियन और अलग अलग तरीके की पोड़ी। मुंह में पानी आ रहा है यार विशाल, दिस इज नॉट ऑन यार, मतलब पूरा, मतलब आई एम लाइक कमाल कर रहे हो यार, ये क्या मतलब है? चलो, पर आपने जो बात कही, आई थिंक उसको, आई थिंक लेट मी ऑल्सो पुट माई तड़का टू इट, कि खाना जो है वो 5 सेंसेस से खाया जाता है। सबसे पहले खाना आप आंख से खाते हैं, राइट, कि भाई उसमें अपने गार्निशिंग कैसे की है, राइट, सो हाउ इट इज प्लेटेड। फिर देखिए, टंग इज ओनली वन पार्ट ऑफ इट। फिर आप जो हाथ से यूज कर रहे हैं, आप अपनी टेक्टाइल सेंसेस यूज कर रहे हैं। तो जितनी आप
सेंसेस यूज करके उसका, तो वो खाना एब्जॉर्ब भी उसी तरह से होगा। इसीलिए बनाते हुए भी कहा है कि आपने जिस शिद्दत और जिस भाव से बनाया, मन में वो प्यार से। हमेशा अच्छा लगता है। और यही हमने वैल्यूज हमेशा इनकलकेट बिरयानी बाई किलो में भी की है, कि जिस शिद्दत और जिस भाव से बनाया जाता है ना खाना, वो शिद्दत, वो सारी सेंसेस उसमें जाती हैं। इट इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एब्सोल्युटली। इसीलिए हम अपनी बिरयानी फ्रीज करके गर्म करके नहीं देते, क्योंकि बिरयानी इज अ लिविंग, जिस उस भाव से जो बनी है, वो भाव हम्म। खिलाने और खाने दोनों में जरूरी है। और वो जब तक करेक्ट आप करेक्ट। आंखें हाथ हर चीज यूज करिए, राइट। तो आई थिंक वो सबका, और आप तो आर्टिस्ट हैं, तो आई थिंक आप खाना भी ऐसे आर्टिस्ट ही खाते हैं, मुझे लगता है कि भाई। हाँ, और घबराना नहीं चाहिए दोस्त। क्या है कि सब लोग आर्टिस्ट हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, हम्म, हम लोग ज्यादातर घबराए रहते हैं कि लोगों को क्या लगेगा। नहीं नहीं, वो तो लाइफ में आई थिंक छोड़ देना चाहिए, आई थिंक। आप बहुत छोड़ो यार, क्योंकि लोगों के पास टाइम नहीं है। और अगर उनको उन्होंने टाइम देखकर आपको देख भी लिया कि आप ऐसे खाते हो, उससे कुछ नहीं होगा। क्योंकि आपको लोग खाना खाना देखकर आपको काम नहीं दे रहे हैं, आपके हुनर के ऊपर काम कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, बी अमेजिंग एट योर वर्क, यू नो, बट डोंट बी वरिड कि आप खाना खा, क्योंकि somebody will have a point ना, क्योंकि यार उंगली से को खा रहा है तो चम्मच से खा, कोई यार चम्मच से, कोई यार फोक से खा, कोई यार फोक से क्या कर रहा है। अब क्या क्या करोगे, सब कुछ लेके बैठोगे क्या? तो रिलैक्स करो, खुल के खाओ। एंड अनदर थिंग, आई मीन लाइक, वांट टू लव टू हियर योर थॉट्स। ये अकेले खाना बड़ा बोरिंग होता है, आपको बताऊं। ये 18-19 साल में बाहर ही घूमता रहा है ना, बाहर घूम। अब यार होटल में बैठ के अकेले रात को खाना खाना पड़ता था। अब मैं आपको बताऊं मैं तरीका क्या करता था, आपको बता दूं। स्पेशली जीआरटी होटल, जो मेरा घर था यहाँ पर चेन्नई में, टी नगर पर, अ, अपना ताज बंजारा हैदराबाद में, ये सब हमारे फिक्स होटल्स हैं। तो रूम सर्विस, हम्म। रूम सर्विस तो बंदा आता था, खाना रखता था, खाना रख के जाने वाला होता था। मैं कहता किसी रुको यार, वेयर आर यू फ्रॉम। अब वो भी बात करता था, मैं भी बात करता था, अरे कहाँ से आया, अच्छा यो उड़ीसा, अरे वाह वाह वाह, अच्छा बताओ, अच्छा कितने साल। तो भाई साहब, मैं अकेला खाना नहीं खाता, मैं लोगों से गपियाता हूँ। और इसीलिए मतलब घर पर भी मेरा बेटा जब 4-5 साल का था, वो मुझे टीज करता था। मैं जब शाम को मैं पीलू को कहता था, अच्छा सो पीलू, सो व्हाट आर वी डूइंग फॉर डिनर। तो पीलू सपोज कह रही है ये मन, ये भी आज सोचे हैं ये। तो मोगली कहता था, बाबा इज आस्किंग हु इज कमिंग फॉर डिनर। बिकॉज अकेले खाने में और लोगों के साथ खाने में एकदम जमीन आसमान का फर्क है बंधु। इट्स अ सोशल इवेंट, फूड इज अ सोशल इवेंट, नॉट अ। क्या आप बात है। एक बात बताइए, मैंने ना कहीं पढ़ा था कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जो वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर्स, आपकी भी शायद हो, तो मैंने यस। उनका पढ़ा था कि मैंने 10 साल जब मैं बॉम्बे में था, तो मुझे रोल नहीं मिला, पर मैं बहुत हाँ लोगों के साथ रहा, मतलब ना, तो मैंने बहुत सारे कैरेक्टर्स पिकअप किए। तो जो मेरा हाँ रिपर्टोरी उन कैरेक्टर्स का, एंड आई यूज देम व्हेन आई एम प्लेइंग अ पार्ट। तो जैसे आपने कहा, आप सोशली किसी के साथ खाते हैं, बातचीत बहुत लोगों से करते हैं, you also pick up your characters like you are talking to me or other people or life, and you keep them आई एम श्योर आई मस्ट बी डूइंग इट। पर मैं ये चीजें बहुत क्या कहते हैं, अनकॉन्शियस होती हैं। लेकिन subconscious। आप आप कुछ चीजें देखते रहते हैं, वो कंटिन्यूसली, वो एक्टर जो होता है वो कंटिन्यूसली कुछ चीजें ऑब्जर्व करता है, अ, सुनता है किस तरह से कोई बात कर रहा है, किस तरह से कौन बैठता है। आप ऑब्जर्व करते रहते हैं। दैट्स पार्ट ऑफ आवर डील। मतलब वो हमारी क्या कहूं, वो हमारी डीएनए में घुस चुका है। और इसीलिए ऐसे ही पकड़ के कोई किसी का मजाक, हम लोग मजाक कैसे करते हैं, तो कहते हैं बड़ा खींचता है यार, वो खींचता ऐसे ही है कि कुछ एक चीज पकड़ ली और उसको उसको लेकर मजाक किया। सो डेफिनेटली मतलब आप ऑब्जर्व करते हैं, सिर्फ खाते हुए नहीं, वैसे भी आप ऑब्जर्व करते रहते हैं। वैसे भी। तो पर आप बहुत, ऑफ कोर्स यू आर सच अ ग्रेट एक्टर, तो यू वुड बी अ गुड ऑब्जर्वर आल्सो, राइट, कि भाई एक थोड़ी सी आई मूवमेंट, थोड़ी पोस्चर, थोड़ी टोन ऑफ द वॉइस, उसी से कैरेक्टर चेंज हो जाएगा, तो वो ऑब्जर्वेशन में भी कहीं इंक्लूडेड होगा। हाँ बट देखिए, परफॉर्मेंस इज नॉट अ गणित। गणित ओके। नहीं है कि एक चीज से क्या हो जाए। इट्स अ प्ले, इट्स लाइक, जैसे अगर आपको मैं कहूं कि आप जितने भी एसओपीज आप डाल दें,
देयर इज समथिंग अबाउट, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, खाने का ही एग्जांपल देता हूँ। आप अगर इंदौर गए हैं और इंदौर में अगर आपने जाके वहां के पोहे अगर खाए हैं, है ना, तो उसमें आप जब खा रहे हैं उसके बाद वो हल्का सा जो प्याज का कचर आता है, एकदम स्टीम्ड है, उसके ऊपर से जो हल्का सा सेव पड़ता है, उसका जो कचर आता है, अगर क्या कि वो टेक्सचर के बीच में वो सॉफ्ट के अंदर, फिर मुंह में पानी कर रहे हो यार तुमने, यार विशाल, दिस इज नॉट फेयर यार, मतलब फिर मुंह में पानी आ रहा है। तो वो आप इंदौर में आप घूम रहे हैं, वहां पर वो जो कढ़ाई में वैसे ढककर वो स्टीम हो रहा है और उसके ऊपर हल्का सा डाल के आप जब खा रहे हो, हा, तो वो जो कचर है, मुझे एक जो सॉफ्ट के बाद ये आता है, जैसे बिरयानी में, आपकी बिरयानी में जो मुझे प्याज का जो खेल था, वो जब जो एक टेक्सचर आता है, सो इट इज ऑल अ गेम, जैसे आपने कहा, it is to do with an experience, my friend, and what is fantastic about a professional, इसमें मैं आपको, मेरे एक टीचर पंडित सत्यदेव दुबे बहुत कमाल की चीज बताते थे मुझे, और मैं कभी नहीं भूला हूं, एंड विच आई थिंक इज ट्रू फॉर एनी प्रोफेशन। देखिए, लोग आपको वाह कहेंगे मैजिकल, मैजिकल था, उफ क्या था, आपको परफॉर्म कर रहे हैं लोग, वाह, या आपने एक टॉक दिया, लोग कहेंगे वाह, या आप बिरयानी जो बनाते हैं हम लोग कहेंगे वाह। He said that people will call it magical, तो लोग कह सकते हैं जादू था, कहते तुम कभी मत भूलो कि इट इज नट्स एंड बोल्ट्स फॉर यू। तो इसमें मेरे बहुत सारे जो अभिनय के साथ जुड़े हुए लोग हैं, मेरे से नाराज है, व्हाट डू यू मीन नट्स एंड बोल्ट्स, यार ये आर्ट है। मैंने कहा यार ठीक है, आर्ट है तो मैं समझता हूँ, बट दीज आर सर्टेन थिंग्स वी डू, जिसका हम रियाज करते हैं, जिसकी हमने तैयारियां की है। वो हम इंटरव्यूज में कुछ बातें लोगों को बता सकते हैं, समझा सकते हैं, जादू है ऑल दैट, but there are certain things that we put in place so that we are repeatedly doing something amazing. Okay, so we should never forget as professionals हमारा रोल क्या है, कि हम उस बैकग्राउंड का जो काम है कभी बंद ना करें। जैसे आप जिस स्टेज पर पहुंचे हैं, 40 आपकी ब्रांचेस हो चुकी हैं, और भी और जगह आप लोग करेंगे, you will understand that the basics of yours, people like us will say, यार कमाल है, हमको पता नहीं है कि आपने कौन सी लौंग डाली और कौन सी इलायची डाली है, कुछ हमको पता नहीं, हमको टेस्ट कमाल मिल रहा है, हम कह रहे हैं मैजिकल है। लेकिन आप जानते हैं, जब हम कहता हूं मैजिकल है, आपने बोला कि देखो हमने जो लौंग थोड़ा बढ़ाया या इसको थोड़ा घटाया, अब लोग मैजिकल कह रहे हैं, क्योंकि हमारे पास वो समझ नहीं है जो आपके पास है। Therefore, so this is two parts of the thing. As a professional, I never ever forget the importance of the work that I need to put into my work. मैं जो भी अपना काम कर रहा हूं, उसके पीछे मुझे जो काम करना है, मैं उसको कभी नहीं भूल सकता। अगर मैं भूल जाऊं उसे, तो लोग उसे मैजिकल कहना बंद कर देंगे। मतलब रेडीनेस, प्रिपेयर्डनेस, प्रोसेस, टीम वर्क उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना उस समय का मैजिक। ये सब मिला के उसी से मैजिक होता है, उसी से मैजिक होता है। या आप एक चीज और बताइए, थोड़ा सा, आप एक्टिंग तो इतनी चाहिए, जो मोटिवेशनल एज अ स्पीकर आप नाउ यू आर डूइंग, एंड आई हैव सीन सम थिंग्स ऑन इंटरनेट, यू डू सो वेल, सो इट इज आल्सो the depth of emotions or observations you have done over the years, so now you're able to capture in people what drives them and able to pinpoint in that direction, and it changes from audience to audience. Yeah, so Vishal, it begins, मेरा जो basic, मेरा जो ethos ये है कि there is one life that you and I have, और इस लाइफ में अगर हम लोग जिंदा हैं तो बड़े लकी हैं। तो अगर हम इस लाइफ में जो जिंदा हैं तो कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं ना यार, कंप्लेन करके क्यों जिए। देखिए, हम और आप सब कंप्लेन करते हैं क्योंकि जिंदगी वैसी नहीं है जैसा हम चाहते हैं। अगर हमारे पास इतना है, हमें इतना चाहिए, अगर इतना है इतना चाहिए, अगर इतना है इतना चाहिए, तो there will always be a gap between what we want and where we are. As a result, हम लोग थोड़े अपसेट रहते हैं अपने आप से। तो मैंने ये पाया थ्रू द जर्नी ऑफ माई लाइफ कि यार कर रहा हूं, बहुत कुछ अचीव कर पा रहा हूं, लेकिन अपसेट हूं, और आसपास वाले भी काफी अपसेट हैं अपनी अपनी वजह से, और वैलिड रीजंस हैं, हर एक के पास एक वाजिब वजह है, यार मैं इसलिए अपसेट हूं, और कहते हैं करेक्ट है, तेरी वजह करेक्ट है पर तू अपसेट है।
सो दैट इज व्हेन अबाउट 12-13 साल पहले मैंने एक अनुसंधान में लगा कि यार कैसा हो पाए कि अगर मैं कुछ इस जिंदगी को अमेजिंगली जी पाऊं. एंड देन 6 years बैक मैंने कहा कि अगेन इट इज देयर इज लॉट ऑफ सेरेंडिपिटी इन्वॉल्व्ड. अगेन एक बाय चांस में किसी सज्जन से मिला, श्री मैनुअल डेविड, जो टाटाज में हैं. उनको मिला एक एयरपोर्ट पर. उन्होंने मुझे कुछ बात करते किसी से सुना. उन्होंने कहा कि वुड यू लाइक टू स्पीक टू एन ऑर्गेनाइजेशन. पहली बार मैंने वोल्टास में बात किया, मेरे ख्याल से 7 साल पहले. और उसके बाद से आई गैदर्ड दैट जो मैंने पाया है अपनी जिंदगी में, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, कैन आई शेयर इट एज माई लाइफ एक्सपीरियंस. सो आई डोंट टीच एनीथिंग टू एनीवन. I share with people my life journey. I share with people how else can we look at things. अगर हम देखें कि जिंदगी में ना जिन सब चीजों से हम गुजरे हैं, उन सब से कुछ ना कुछ मिला है हमको. और अगर हम उसको एक्नॉलेज कर पाए, अगर हम उसको कह पाए कि यार शुक्रिया, तो जिंदगी एकदम याकू दिखती है. जिंदगी एकदम मजेदार दिखती है अगर हम कुछ कह पाए उसके बारे में कि यार ये कुछ इंटरेस्टिंग था. तो मैंने अपने उस एंडेवर को, आई स्टार्टेड शेयरिंग विद पीपल. I started sharing ways, and that worked. It worked with people. It worked across the biggest of organizations, the smallest of organizations. So मैं colleges, school से लेके board of directors के साथ मैं interact करता हूँ. Depending on whom I'm speaking with, what I'm speaking gets altered. I curate. I make bespoke conversations which make a difference to people. क्योंकि generic conversation बड़ा boring होता है ना. तो आप जब लोगों को कुछ ऐसा दिखा पाओ ताकि उनको अपनी जिंदगी में कुछ प्रभाव हो सके, तो उससे ज्यादा फुलफिलिंग कुछ नहीं है बंधु. जब कुछ महीनों पहले तक जब हम फ्लाई करते थे, जब कुछ सालों से एयरपोर्ट पर ऐसे लोग तो मिलते ही हैं जो सेल्फी लेना चाहते हैं क्योंकि आप एक्टर हैं. उसके बाद इतना अच्छा लगता है, कुछ सालों से लोग मिल रहे हैं जो कह रहे हैं you came to my session, you came to my organization, or I watched your video, and it's so fulfilling. विशाल, मैं बता रहा हूँ आपको, क्या बताऊं, अमेजिंग लगता है जब कोई लोग मिलते हैं, कहते हैं कि आपकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ. और भी अमेजिंग खुशी मिलती है जब कोई कहता है कि आपके उस टॉक से मुझे कुछ दिखा, मैंने अपने लिए कुछ पाया. दैट्स अ वेरी फुलफिलिंग थिंग. तो ये अपने एक और आयाम को मैं डिस्कवर कर पाया हूँ. Maybe it's very rare for people to have more than one avatar. You have the second avatar. I always, take example of Arnold Schwarzenegger, right? Some people, he is a little controversial, but he was one of the best bodybuilders in the world. One avatar. Second avatar, yes. He was one of the big Hollywood stars. Third avatar, he was politician, governor. So not easy to change avatars because every avatar requires a different skill set, different motivation. डिफरेंट तो लॉट ऑफ पीपल हैव ट्राइड. तो हेड्स ऑफ टू यू कि आपने एक और. अच्छा, मैं आपको अब इसका आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ. ओके, एक चीज है, हम लोग बाहर से अगर देखते हैं, अगर मैं आपके काम को बाहर से देखूं, दो तरह से देख सकता हूँ. एक तरह देखता हूँ, अरे यार देखो क्या मस्ती कर रहा है यार, वो बैठा हुआ, लोग बिरयानी बना रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, बहुत आसान है. एक बहुत आसान है, देखो यार क्या कमा रहे. सुनिए, मैं आपको दो तरह. आप जब वेडनेसडे को एक रेस्टोरेंट में घुसते हैं, याद है कुछ साल पहले हम रेस्टोरेंट में जाते थे, आजकल नहीं जाते. वेडनेसडे को रेस्टोरेंट में पहुंचे, शाम के बाद चकाचक भरा हुआ, अरे यार क्या मस्ती का काम है, यही करना चाहिए, देखो क्या आराम से बैठ के पैसे कमा रहा है, किसी को पता ही नहीं कितना काम गया उसके अंदर. ठीक है ना. तो मैंने कहा एक तरीका ये है, अरे यार कितना ईजी है. दूसरा ये होता है, देखो यार कितना मुश्किल काम है, तो विशाल जो तुम कर रहे हो, इट इज इम्पॉसिबल यार, हाउ डू यू मैनेज. वो तुमको खुदा बता दे रहे हैं कितना मुश्किल काम किया. बट इफ यू लुक एट इट, जिंदगी इन दोनों के बीच में है. बीच में नथिंग इज एज सिंपल एज इट लुक्स, नथिंग इज एज कॉम्प्लेक्स एज यू मेक इट. राइट. एंड देयरफॉर जब व्हेन यू आर अ प्लेयर, जब आप खुद अपनी लाइन में हैं, जैसे आप जो कर रहे हैं, आप जानते हैं कि आप उसको कर रहे हैं, यू आर डेली डीलिंग विद इट. Daily you're dealing with choices. So when you are a player and not a spectator, when you are not judging others, you're not doing it for others, you're doing it for yourself. So you find your ways, you make your team, you make yourself so amazing, because you're not doing it.
आप मुश्किल काम नहीं कर रहे, आप वो काम कर रहे हैं जो आप करना चाहते हो. सो नाउ यू विल फाइंड वेज टू डू इट. तो मैं लोगों को कहता हूं, प्लीज डोंट डिस्कस अदर्स, स्टॉप डिस्कसिंग अदर्स. टेल मी व्हाट इज इट दैट यू वांट टू डू, बिकॉज योर की इज इन व्हाट यू वांट टू डू. आप मुझे एक बात बताइए, लोग कहते हैं ना रोल मॉडल, प्लीज आप मुझे बताइए, टेल मी वन एंटरप्रेन्योर हु हैज टेकन योर रूट. कोई नहीं, थैंक यू सो मच. अब देखिए, मैं जो सुन रहे हैं ना उनको भी बता रहा हूं, आप किसी दो को देखिए जो सेम रास्ते से आगे बढ़ा है, कोई नहीं गया है. द गेम इज वेरी सिंपल बंधु, गेम इज वेरी सिंपल. पिक अप समथिंग दैट इंस्पायर्स यू एंड फाइंड वेज टू डू इट. इज इट गोइंग टू बी इजी? नो, इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी, बट इट इज. डोंट स्टॉप, डोंट डिस्कस अदर्स. देखो उन्होंने किया, कुछ नहीं भाई, तुमको क्या करना है करो. सबसे पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, एंड यू वुड हैव गॉन थ्रू इट विशाल, इज दैट दिस केयर कि लोग क्या कहेंगे, हमारा रेपुटेशन हो गया, अगर मैं अनसक्सेसफुल हो जाऊं क्या. इफ यू से आई डोंट केयर, इट्स माई लाइफ. क्योंकि लोग मुझे कहते हैं यार तुम एक्टर थे, तुम ये कर रहे हो, मैं कुछ भी करूंगा यार, मेरी जिंदगी है. मैं इस समय आपसे बात कर रहा हूं, इस समय सिर्फ आपकी बात कर रहा हूं. इसके बाद जो मैं करूंगा सिर्फ वो करूंगा. मैं उस डर से नहीं बैठूंगा कि अरे यार तुम आसानी. सी यू हैव कॉल्ड मी वंस, आई सेड यस आई विल डू इट वेरी क्लियरली. कोई भी कुछ सकता है, अरे क्या टाइम ही टाइम है, बिल्कुल टाइम ही टाइम है. आई हैव टाइम फॉर व्हाट आई वांट टू गिव टाइम फॉर. रिमेंबर दिस, ऑलराइट? एंड दैट इज द एबिलिटी दैट ईच वन ऑफ अस मस्ट हैव. Be passionate about something and go about doing it. Don't discuss others. No, what you said, I also, मैं paraphrase करके भी बोलता हूँ, maybe some people. So, see, I think anyone's capacity to succeed is also dependent on their ability to take failures. तो वो भी बहुत जरूरी है. और जो आपने उसी को कह रहा हूँ दोहरा के. But what happens, and I think this is slightly complicated, I would say to you. What happens is कि जैसे काफी बॉलीवुड एक्टर्स हैं, आपने भी देखा होगा, और बहुत फील्ड्स में, पॉलिटिक्स में चले जाते हैं, दे माइट नॉट बी सूटेड फॉर इट. पर व्हाट समटाइम्स बाकी लोग जो कहने लगते हैं आपको, इफ यू आर सक्सेसफुल इन वन फील्ड, कि ये तो आप अच्छा कर लेंगे, शायद वो अपने स्वार्थ के लिए कह रहे हैं, पर आपको कहने लगते हैं. फिर कहीं ना कहीं आप खुद भी प्रोजेक्ट करने लगते हो, ये तो मैं अच्छा कर सकता हूँ, पर वहां आदमी फंस जाता है, राइट? कई बार एक्टर्स मे नॉट गुड producers might not make, or actor or someone in one field. तो ये समझना कि अपने को क्या चाहिए, वो भी एक जर्नी है, और वो रियली आप चाहते हो या बाकी लोग कह रहे हैं इसलिए आप चाहते हो. and your ability to that failure if it doesn't succeed. Exactly. Those are also very important. And also बहुत important बात इसमें ये है सर, जैसे आपने बहुत अच्छा कहा कि दूसरे के कहने पे किसी चीज में कूदो मत. एक तो ये बात जरूरी है. दूसरी बात ये है कि have faith in yourself. Yes. Okay? And remember this. I mean, failure is a step away. Yeah. And so is success. So we have to be just mindful for it. देखिए, अगर आप बैठे रहेंगे तो आप surely fail नहीं करेंगे, ना ही आप succeed करेंगे. आप ऐसे ही बैठे रहेंगे, आप दूसरों को डिस्कस करेंगे. मेरा बात यह है कि कौन कहता है, मतलब कोई कहते हैं नहीं यार उसने गलती की पॉलिटिक्स में आया, उसने जो किया उसने वो किया बंधु. लेट दैट पर्सन हैंडल इट. आपको क्या पता है करें, उसको नहीं करना चाहिए था, अच्छा नहीं करके क्या करना चाहिए वो भी नहीं पता. लेकिन मैं तुम्हें बताऊंगा क्या गलत किया. मैं लोगों को बोलता हूं कि आप, कई लोग होते हैं उनको आप 10 मिनट दीजिए, आप कोई भी आइडिया दीजिए और 10 मिनट दीजिए. जस्ट वांट टू थैंक यू एंड गुड टू सी यू. यस. And I lovely seeing you, and I love to see you in person. आप दिल्ली गुड़गांव आ रहे हैं, love to take you to Biryani by Kilo, one of the outlets, and love to otherwise. And I love to come to the series you do, Forever Living, and love to be a part of anything you are doing. You are a great human being, and it's lovely talking to you. बहुत बहुत शुक्रिया. Keep doing the good work and keep adding tadka to your life and to others. Keep trying our Biryani by Kilo, biryani, kebabs. And thank you so much for everything in life. बहुत शुक्रिया. Thank you so much. Thank you so very much. Appreciate it. Thank you so much.